Good morning to all of the students. Today we will go on the next chapter, composition of matter. So first we will see few of the question. What are the various state of matter? You know very well various state of matter: solid, liquid and gas. Now what are the difference between ice, water and the steam? You know ice is in the solid state, water you know very well in the liquid state, and steam is in the gaseous form. What are the smallest particle of matter called? That we have seen in the last chapter. What are the types of the matter? That is element, compound and the mixture. तो this all we have seen in the previous standards. ये सारे क्वेश्चन हम लोग पुराने स्टैंडर्ड में भी देख चुके हैं. Which cannot be seen or we can say we see around us and also those we can say what they are telling. We saw in the previous standard that all objects that we see around us and all those which we cannot see are made up of the same or other matter. क्या बोल रहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जो अपने सराउंडिंग नेचर में दिखते हैं. फ्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी इन योर सराउंडिंग नेचर बट फ्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट यू कांट सी इन योर सराउंडिंग ऑब्जेक्ट. कुछ नेचर बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हम लोग ईजिली देख पाते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हम लोग देख नहीं पाते हैं. क्लासिफाइंग द फॉलोइंग मैटर दैट इज कोल्ड ड्रिंक, एयर, शरबत, द वाटर एंड द wood and the current, which are in the matter of the three groups. What are the states of matter that you see that you use your criteria for the above classifications? ये जो हम लोग ने ऊपर देखे what we have seen the above questions, तो कौन से क्राइटेरिया में आते हैं, किस तरह से हम लोग क्लासीफाई करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस के हिसाब से. Now take some mustard seeds in a transparent plastic glass. Just look 6.1 figure movement of the mustard seeds. They are telling just take a mustard seeds thread, just take a long thread and the thread at the center of the big balloon. They are telling just take a balloon, we can just take a balloon, in the balloon just put a thread in the center, form a by means of a needle and tie it tight. They are telling जो कि बोलते हैं ना balloon, एक balloon ले लो, एक needle के through उसके अंदर put करो, just put a thread at the center with the help of the needles और tie करो in the tie. Stretch the rubber, जिसे बोलते हैं ना diaphragm, whatever the rubber is just there, rubber ले लो और fix करो by the mouth of we can say fix it on the mouth by the jar by means of the rubber band. मीन जो उसका बोलते हैं ना सेंटर है, सेंटर के थ्रू क्या पुट करो तुम लोग, रबर पुट करो by the means of the balloon. बोलते हैं ना बलून ले सकते हम लोग या तो रबर उसने बताया है, और रबर थ्रेड के बोलते हैं ना रबर बैंड के थ्रू उसके सेंटर के अंदर पुट करो. पुल द डायफ्रा अप एंड डाउन, वो बोलते हैं ना डायफ्रा को अप एंड डाउन में पुल करो विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड स्लोली, बोलते हैं ना स्लोली थ्रेड को पुट करो अप और डाउन एंड ऑब्जर्व करो. देन विद द मॉडरेट फोर्स, बोलते हैं ना फोर्स, बोलते हैं ना कभी एकदम फास्ट और कभी एकदम स्लो, मॉडरेट फोर्स. एंड देन विगरसली, जैसे बोला मैंने पहले स्लोली करो फिर फास्ट करो, बोलते हैं ना मीडियम साइज में करो फिर एकदम फास्ट करो. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड करना है. इन द स्लो यू विल ऑब्जर्व वाइब्रेशन इन द सेम प्लेस. जो स्लो बोलते हैं जब स्लो करेंगे ना तो वाइब्रेशन उसका सेम प्लेस में रहेगा. बट इन द मॉडरेट फोर्स यू विल ऑब्जर्व द वाइब्रेशन विल बी लिटिल बिट इन द फास्ट. एंड इन द विगरस, इन द फास्ट कंडीशन वॉट एवर द वाइब्रेशन यू विल ऑब्जर्व. जस्ट लुक दे गिवन पुल द थ्रेड स्लोली, मॉडरेटली, विगरसली. तो दे गिवन इन द स्टेट ऑफ द different differences in the moderate state and then in the vigorous state that you will observe. vigorously जब फास्ट करेंगे ना तो जो मस्टर्ड सीड रहेगी ना उसके अंदर अबाव बोलते हैं ना दे विल फ्लो. तो ऑन द अबाव एक्सपेरिमेंट वी गिव एनर्जी. ये जब देख रहे हैं ये जो अबाव एक्सपेरिमेंट से मूवमेंट ऑफ द मस्टर्ड सीड में what you are observing the energy is there less or more. Some of the time the energy is less or some of the energy is more on the mustard seed by pulling the डायफ्रा. जो बोलते हैं ना हम लोग डायफ्रा को पुट कर रहे हैं अप एंड डाउन में, पुल कर रहे हैं अप एंड डाउन में, मेकिंग them मूव डिफरेंटली. इससे क्या हो रहा है कि जो मस्टर्ड सीड्स है ना स्लोली और फास्ट कंडीशन में वो अलग अलग कंडीशन में मूव हो रहे. द पार्टिकल इन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट्स ऑफ द मैटर है मूवमेंट. ये जो पार्टिकल है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस का स्टेट का उसमें मूवमेंट रहती है. हाँ देयर इज़ अ मूवमेंट आर देयर एंड सम वॉट सिमिलर टू डैट, बोलते हैं ना कुछ ऐसी सेम कंडीशन में रहती है ना. फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर 6.2 फिगर में देखो, यू आर लुकिंग सॉलिड, लिक्विड एंड दी गैसेस, इनर पार्टिकल, वेरी लेस पार्टिकल इन द मीडियम पार्टिकल इन द गैसेस फॉर्म.
तो द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है ना वो एक्ट करता है बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल्स। किस पे? एटम और मॉलिक्यूल रहता है ना, उन दोनों पे एक्ट करता है मैटर्स के। द एक्सटेंट ऑफ द पार्टिकल मूवमेंट इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स। वॉट एवर द एक्सटेंट बोलते हैं ना, जो उसका मूवमेंट रहता है वो कैसे डिटरमाइन होता है? उसके फोर्स के थ्रू डिटरमाइन होता है। हाउ मच फोर्स यू आर अप्लाइंग। द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड्स आर वेरी क्लोज। जो सॉलिड के पार्टिकल तुम लोग ऑब्जर्व करोगे ये एकदम क्लोज होते हैं टू ईच अदर, वाइब्रेट एट देयर फिक्स पोजीशन। जो वाइब्रेशन भी रहेगा उसके फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेशन होने वाला है। नाउ ड्यू टू दिस द सॉलिड गैस, वी कैन से बिकॉज ऑफ दिस दे आर टेलिंग द सॉलिड गेट्स प्रॉपर्टी लाइक डेफिनेट शेप। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, ये मेन रीज़न रहता है कि सॉलिड क्या होता है, एक डेफिनेट शेप में रहता है और उसकी वॉल्यूम भी क्या रहती है, डेफिनेट रहती है। एंड ऑल्सो द हाई डेंसिटी इज ऑल्सो, द डेंसिटी इज ऑल्सो वेरी हाइयर इन दिस कंडीशन। एंड नॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी बोलते हैं ना, उसको ज़्यादा प्रेस भी नहीं कर पाते। The strength of the intermolecular force is moderate in the liquid condition, but in the case of the liquid condition ये moderate रहता है, medium बोल सकते हैं हम लोग। Though it is not in the strong enough, बोलते हैं ना एकदम strong नहीं रहता और ये fix भी नहीं रहता है पार्टिकल के अलग अलग पोजीशन में। डेफिनेट बोलते हैं ना, it is to fix the particle in definite positions, इसको हम लोग फिक्स नहीं कर पाते बोलते हैं ना लिक्विड कंडीशन में, एक डेफिनेट पोजीशन में। It is strong enough to hold them together, बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहता, इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं पोजीशन में रहता है। टू होल्ड देम टुगेदर बोलते हैं ना एक साथ नहीं, क्योंकि लिक्विड अगर तुम लोग कैच करने जाओगे तो पॉसिबल है लिक्विड को कैच करना, तुम लोग ने ऑब्जर्व करे होगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैच। एज अ रिजल्ट द लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। ये मेन रीज़न रहता है कि लिक्विड के अंदर क्या रहता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। हाउएवर दे आर फ्लूइडिटी, बोलते हैं ना मगर बोलते हैं ना तो फ्लो, बोलते हैं ना फ्लो हो जाता है, मतलब फैल जाता है। एंड देयर शेप इज़ नॉट इन डेफिनेट पोजीशन, जो उसका शेप रहता है वो भी डेफिनेट पोजीशन पे नहीं रहता है। द शेप ऑफ द लिक्विड यू विल सी इट इज़ नॉट इन अ प्रॉपर शेप। वॉट एवर you have seen a different container, in a different container we are putting a liquid, then you will observe the liquid size is also a different। तुम लोग ने ऑब्जर्व किए होगे, कभी ग्लास में तुम पुट करोगे, कभी जार में तुम लोग पुट करोगे, कभी बकेट में पुट करोगे, तो जो भी बोलते हैं ना बकेट है, जार है, वॉट एवर द ग्लास, इन दैट लिक्विड यू आर पुटिंग, यू आर ऑब्जर्विंग इन द लिक्विड आर कमिंग इन दैट शेप। लिक्विड वो शेप में अब आ जाता है, बट वो एक्चुअली शेप नहीं है, वो कंटेनर का शेप है। However, they have the fluidity, they are telling, but changes in according with their container। जैसे मैंने बोला उसके कंटेनर के हिसाब से उसका शेप आ जाएगा, जैसे कि ग्लास, बकेट है, वो सब। The intermolecular forces are they are telling us in a very weak। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स रहता है इसमें बोलते हैं ना एकदम वीक रहता है। हाँ, इन गैसेस फॉर्म में तो एकदम ये वीक रहता है। देयरफॉर दे आर टेलिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द गैसेस मूव फ्रीली। जो बोलते हैं ना गैसेस के जो पार्टिकल्स रहते हैं ना वो ईजीली बोलते हैं ना मूव होते रहते हैं। वॉट एवर द अवेलेबल शेप्स आर देयर। यू हैव सीन एन एग्जाम्पल ऑफ द बलून्स। Consequently, the gases have neither definite shape nor definite volume। इन द केस ऑफ द गैसेस में तुम लोग ने ऑब्जर्व किए होंगे कि उसके डेफिनेट से बोलते हैं ना शेप भी उसका प्रॉपर नहीं रहता है और वॉल्यूम भी उसका प्रॉपर नहीं रहता है। तो जस्ट सी इन द 6.2 फिगर, फर्स्ट जस्ट द कंटेनर ऑफ द सॉलिड्स द गिवन, वॉट एवर द पार्टिकल्स आर देयर, जो पार्टिकल्स से एकदम क्लोजली है, एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं। लिक्विड के केस में ऑब्जर्व किए होंगे, दैट इज़ मीडियम केस वी आर डेलिंग। मीडियम केस में क्या बता रहा है, ये जो पार्टिकल्स है ये मीडियम शेप में है, थोड़ा दूर दूर रहते हैं। बट इन द केसेस ऑफ द गैसेस द पार्टिकल्स आर मूविंग वेरी वेरी लार्ज, बोलते हैं एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं इसमें, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स का। नाउ दे आर टेलिंग जस्ट इन द 6.2 फिगर, एंड इफ़ यू विल ऑब्जर्व इन सब माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर, बोलते हैं ना सब माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ये बता रहा है, वो ऑब्जर्व करोगे। नाउ इन द टेबल 6.3 व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर टेलिंग, ये फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर फर्स्ट सॉलिड दे आर टेलिंग, फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, प्लास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी। पहले तो ये रिजिडिटी शेप में रहता है, प्लास्टिक शेप में भी रहता है और इलास्टिक शेप में भी रहता है, सॉलिड का कंडीशन बता रहा है प्रॉपर्टी में। वॉल्यूम डेफिनेट है, शेप भी डेफिनेट रहता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी दैट टेलिंग नेग्लिजिबल, हम लोग इतना ज़्यादा प्रेस नहीं कर पाएंगे इसको। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी वीक, वाई दे आर टेलिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग क्यों रहता है, एक दूसरे के क्लोज में रहता है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, जो डिस्टेंस रहता है ना पार्टिकल का एकदम मिनिमम रहता है, मतलब उसकी एक दूसरे से बोलते हैं ना बाजू में ही रहता है एकदम, जो डिस्टेंस रहेगा एकदम कम ही रहने वाला है इसमें, क्योंकि जो पार्टिकल रहेंगे एकदम क्लोज रहने वाले इसमें। बट इन द केस ऑफ द लिक्विड यू विल ऑब्जर्व
लिक्विड के केस में ऑब्जर्व करोगे कि ओनली द प्रॉपर्टी इज़ फ्लूइडिटी, इसकी प्रॉपर्टी से फ्लूइडिटी में आती है। वॉल्यूम डेफिनेट है, शेप डेफिनेट नहीं रहता, दैट इज एटरिंग इनडेफिनेट शेप। कॉम्प्रेसिबिलिटी विल बी देयर बट वेरी स्मॉल, जो कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है प्रेस करने की कॉम्प्रेसिबिलिटी एकदम स्मॉल रहती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर मॉडरेट, बोलते हैं ना थोड़ा डिस्टेंस रहेगा इसमें, डिस्टेंस इज ऑल्सो मॉडरेट एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर ऑल्सो मॉडरेट। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है और डिस्टेंस है थोड़ा मॉडरेट, मतलब मीडियम साइज में रह सकता है, मतलब थोड़ा बहुत डिस्टेंस दिखेगा और मॉलिकुलर फोर्सेस भी तुम लोग ऑब्जर्व देख पाओगे थोड़ा दूर दूर में है। बट इन द केसेस ऑफ द गैसेस यू विल ऑब्जर्व फ्लूइडिटी इज देयर, वॉल्यूम इज इनडेफिनेट, वॉल्यूम प्रॉपर नहीं रहता इसमें। शेप्स यू विल ऑब्जर्व द शेप इज ऑल्सो इनडेफिनेट। कॉम्प्रेसिबिलिटी इज़ वेरी हाई, जिसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी रहती है ना एकदम हाई रहती है, इसकी वजह से जो पार्टिकल्स रहते हैं ना एकदम दूर दूर रहते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या बताया, वेरी वीक, यार इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी वीक, बिकॉज ऑफ दैट रीजन द पार्टिकल्स आर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज। जो डिस्टेंस रहता है ना पार्टिकल का एकदम दूर दूर रहने वाला है। द नेक्स्ट थिंग्स वी विल डिस्कस the nature of the materials and all these things, chemical formula and the composition types of the matter on the next topic.